Hello students, now we are going to start the practical questions of bill of exchange. Now what is bill of exchange we have already discussed in the previous video. Now by the practical question, first of all we should know what should be the due date. Due date, you already know the date on which the payment of the bill becomes due, that is called the due date, or you can also say the date of maturity. It means the date on which the duration of the bill comes to an end, means कि जो आपका बिल था जिस डेट पे अमाउंट जो है रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट और द मैच्योरिटी डेट. एंड नाउ हाउ दिस द ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट इज टू बी फाइंड आउट. सपोज जो बिल था वो आपने राइट किया ऑन द 1st of Jan फॉर 2 months. नाउ व्हाट शुड बी द ड्यू डेट फॉर दिस बिल. 1st Jan को बिल लिखा. जब 1st Jan को बिल लिखा फॉर 2 months, मीन्स आपका एक फर्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हुआ 1st Feb को. ठीक है, आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ 1st Feb को. आफ्टर दैट 1st March को. एंड यू नो कि जब हमने किया था कि जब ड्यू डेट हम फाइंड आउट करते हैं, देन वी हैव टू ऐड 3 days फॉर द ग्रेस. अब 3 days ग्रेस के ऐड करेंगे. 1st March आपके पास है, इंक्लूडिंग 3 days फॉर द ग्रेस वी हैव द ड्यू डेट इज ऑन 4th of March. तो 4th March विल बी द ड्यू डेट. एज इन द सेम वे we have the 28th of Jan 2017 for 1 month. अब 28th Jan है for 1 month. Now 1 month will be complete on 28th of Feb. Now we have to include the grace days. 3 days आपको ग्रेस के ऐड करने हैं. तो 1st, 2nd and 3rd, अगर आपने 3 दिन ग्रेस के ऐड करें then the due date will be 3rd of March. Clear? After that we have in 30th Jan for 1 month. 30th Jan means 1 month आपका कंप्लीट होगा 30th Feb. बट वी नो वी डोंट हैव एनी 30th Feb. सो आपका डेज जो कंप्लीट हो रहा है, मंथ जो कंप्लीट होगा वो होगा 28th Feb को. क्लियर? अब अगर 28th Feb आपकी कंप्लीट होती है देन आपके 3 days ग्रेस के ऐड करेंगे, देन इट विल बी 3rd of March. क्लियर? सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ड्यू डेट. Then we have on 30th April for 3 months. 30th April for 3 months means April means May, June and July. Now we have the 30th July, that the complete 3 months on 30th July. Now we have to add 3 days of grace. अब ग्रेस के जो 3 days आप ऐड करेंगे उसमें तो एक तो आपके पास आ जाएगी 31st July, then 1st August. So it will be the 2nd of August will be the due date for the bill. After that we have the 30th April. अब आपके पास है 30th April. 30th April को आपने फाइंड आउट करना है और आपका जो बिल है वो 30 days के लिए है. ठीक है, 30 days के लिए बिल है 30th April. तो आपके जो 30 days आपके कंप्लीट होंगे May मीन्स इट विल बी 30th May, देन 31st May, 1st June. सो आपके पास आ जाएगी 2nd June 2017 विल बी द ड्यू डेट, क्योंकि 30th May को आपका पूरे 30 days कंप्लीट होंगे. देन आपके जो 3 दिन ग्रेस के ऐड होंगे जिसमें 31st May, 1st June एंड द 2nd June. तो 2nd June विल बी द पर्टिकुलर डेट फॉर द बिल. Then here we have some more other conditions to find the due date. If the due date including the days of grace falls on Sunday or the public or a gazetted holiday, then the due date will supposed to be 1 day earlier. It means कि अगर 26 Jan आपका due date है then it will be the 25th Jan हो जाएगा, because 26 Jan is an आपका gazetted holiday है और public holiday. If the due date including the days of grace has been declared as an emergency holiday, then the due date will supposed to be 1 day later. Means अगर आपका due date 5th July को है and because of any reason the 5th of July will be declared as an emergency holiday due to the maybe the death of a national leader or something else there, then the due date will be the due date will be 6th of July. For example, we have the bill for write down 23rd November for the 2 months. अब 2 months means आपका जो बिल है 23rd December is the first month, 23rd Jan will be the second month done on 23rd Jan.
देन आपके 3 डेज ग्रेस के आपने ऐड किए, तो आपके पास आ जाएगा 26th ऑफ जैन विल बी द ड्यू डेट, बट ड्यू टू द हॉलीडे ऑन 26th ऑफ जैन द ड्यू डेट विल बिकम 25th ऑफ जैन। तो आपका जो मेच्योरिटी डेट हो जाएगा दैट विल बी 1 day अर्लियर, मीन्स 25th ऑफ जैन। क्लियर? एज इट इज़ वी हैव गिवन we write a bill on 23rd May 2016 for 60 days, and the question is also given that कि आपका जो इमरजेंसी हॉलीडे है वो 25th ऑफ जुलाई को है, देन आपका 25th में और 60 डेज़ का आपका बिल है। तो ये आपने बिल जो राइट किया था वो 23rd मई को किया था, तो मई के आपके पर्टिकुलर डेट्स हो गए 8, देन जून के आपके हो गए 30, आपके जो टोटल डेज़ थे वो हैं 60 प्लस 3 डेज़ एक्स्ट्रा ग्रेस के, तो आपके हो गए 63 डेज़। तो 63 डेज़ आपको चेक करने, यहाँ तक आपके कंप्लीट हुए थे 38, तो ये आपके हो गए मई, जून, अब जुलाई के आपको कितने पर्टिकुलर डेज़ होंगे, 23 डेज़ आपकी टोटल है और 38 डेज़ कंप्लीट हो गए, मीन्स इट विल बी 25th ऑफ जुलाई विल बी द ड्यू डेट, एंड बिकॉज 25th ऑफ जुलाई आपकी इमरजेंसी हॉलीडे है, देन द ड्यू डेट विल बी on 26th of July. Due to the 25th July it will be declared as declared 25th July is an emergency holiday, so the due date will be on 26th of July. So this is the way how to find out the maturity date or the due date on which the amount is to be received. Now we have the different uses of the BR, कि जब बिल आपके पास राइट करके आपके पास बिल आया, then the drawer may keep, जो आपका ड्रॉर है, that he may keep the bill till the date of maturity, he may discount it with the bank before the date of maturity, he may endorse it to some other party before the date of maturity, or he may send it to the banker for the collection, और वो बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज सकता है, अपने पास रख सकता है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, थर्ड पार्टी को बिल दे सकता है, और he may send the bill to the banker for the collection, तो कलेक्शन के लिए अपने पास बैंक के पास भेज सकता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट केस इन विच द बिल इज़ रिटेन बाय द ड्रॉर। अगर बिल अपने पास रखता है, देन जो ड्रॉर है वो हिमसेल्फ अपने पास जो है रिसीव करेगा पेमेंट ऑन द बिल ऑन द डेट ऑफ द मेच्योरिटी, देन व्हाट एंट्री इज़ टू बी पास। सपोज एक्स जो है वो आपके पास जिसने बिल राइट किया था ड्रॉर, एंड वाई इज़ द ड्रॉई हु एक्सेप्ट द बिल, ठीक है। सो व्हाट एंट्रीज टू बी पास व्हेन द बिल इज़ रिटेन बाय द ड्रॉर, अगर बिल इसके पास ही है। सपोज अभी फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, मान लो कि एक्स जो है वो गुड्स सेल करता है वाई को, देन एक्स जो है वो क्या एंट्री करेगा, एज यू ऑलरेडी नो कि वाई टू सेल्स अकाउंट फॉर द एक्स गुड्स सोल्ड टू वाई। अगर गुड्स सेल करी है एक्स ने वाई को, तो एक्स एंट्री करेगा वाई टू सेल्स अकाउंट्स, नरेशन आपके पास आ जाएगी गुड्स सोल्ड टू वाई। अब वाई क्या एंट्री करेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। तो जब उसने गुड्स परचेज करी एक्स से, तो वो क्या एंट्री करेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। नाउ अब आपके पास है कि एक्स ने जो था वो बिल राइट किया और वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने बिल एक्सेप्ट करके वापस एक्स को दे दिया। अब एक्स के पास बिल आया, नाउ व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड बाय एक्स, एक्स की एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और नरेशन आपके पास आ जाएगी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब वाई की एंट्री करेगा क्योंकि वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबर अकाउंट, इसने एक्सेप्टेंस दी थी तो एक्सेप्टेंस गिवन। क्लियर? नाउ जब ड्यू डेट आपके पास आएगी, ड्यू डेट पे एक्स को जो था वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा। जब एक्स को अमाउंट रिसीव होएगा, देन व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल for the amount of bill received on maturity.
Now in this case, what the entry that will be passed by the y, bills payable, because आपका जो liability है वो reduce हो जाएगा, bills payable account debit to bank account, the amount of bill paid on maturity. ठीक है, कि जो अमाउंट था वो आपने मेच्योरिटी की डेट पे आपने पेमेंट जो है वो कर दी. नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. Here we have, on 1st Jan, X sold goods to Y for rupees 50,000, and on the same date, X draw a bill on Y for rupees 50,000 due after 3 months. Y ने बिल एक्सेप्ट कर दिया एंड रिटर्न कर दिया वापस X को. X ने बिल जो था ड्यू डेट तक अपने पास रखा एंड Y ने ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर दी. पास जर्नल एंट्रीज. नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो हेयर वी हैव द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन X ने गुड सेल की थी Y को 50,000 की, और सेम डेट पे X ने बिल लिखा Y पे 50,000 का फॉर 3 मंथ्स के लिए, और Y ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और वापस X को दे दिया. एंड नाउ व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड बाय X एंड Y. तो X और Y दोनों क्या जनरल एंट्रीज करेंगे. सबसे पहले जो तो बिल राइट किया था, फर्स्ट गुड सोल्ड की थी X ने Y को 1 Jan 2019. तो X एंट्री करेगा Jan 1 2019 को, बिकॉज उसने गुड सेल किया Y को. तो Y टू सेल्स अकाउंट 50,000, गुड्स सोल्ड टू Y ऑन क्रेडिट. अब 1 Jan को जब X ने ये एंट्री करी तो Y की एंट्री करेगा 2019 Jan 1st, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम X 50,000. ठीक है. Now on the same day a bill is written and bill is accepted by Y and return it to the X. तो सेम डेट Jan 1st को ही बिल जो था X के पास आ गया. व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड. BR अकाउंट डेबिट टू Y, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम Y. Y से बिल रिसीव्ड हो गया 50,000 का. ठीक है. नाउ Y की एंट्री करेगा ऑन द सेम डेट Jan 1st को, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया. तो X डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट फॉर द एक्सेप्टेंस गिवन टू X 50,000. Now on the due date the bill is received by the X. अब what should be the due date. आपने जो बिल राइट किया था वो 1 Jan को राइट किया था फॉर 3 मंथ्स. 1 Jan मीन्स 1 Feb, 1 March एंड 1 April, और 3 दिन डेज की वजह से ऐड करेंगे तो इट विल बी 4th April. तो April 4th द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय X. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू bills receivable account, the amount of bill received on due date. तो 50,000 का जो ये अमाउंट था ये रिसीव हो गया. एंड बिकॉज अप्रैल 4th को Y ने पेमेंट कर दी, देन Y की एंट्री करेगा, उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई. तो बिल्स पेबल account debit to bank account for the amount of the bill paid. Amount of bill paid on due date. तो 50,000 का जो ये बिल का अमाउंट था दैट इज़ पेड बाय द Y. तो ये एंट्री होंगी X की बुक्स में और Y की बुक्स में. X ने गुड सेल करी तो एंट्री करेगा Y टू सेल्स, और एक Y एंट्री करेगा परचेजेस टू X.
देन बिल राइट किया, बिल एक्सेप्ट होके वापस एक्स के पास आ गया, एक्स विल डू द एंट्री बी आर टू वाई, और इसने बिल एक्सेप्ट किया था तो एक्स टू बिल्स पेबल. देन ऑन द ड्यू डेट द अमाउंट इज रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड इसने पेमेंट कर दी है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉ टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. नाउ वी हैव द सेकेंड केस व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. अगर बिल जो था वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाए देन व्हाट एंट्री दैट टू बी पास्ड. बिकॉज अगर बिल का जो होल्डर है उसे ड्यू डेट से पहले यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले अगर उसे मनी रिक्वायर्ड है देन ही कैन गो टू द बैंक एंड डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक टू ऑब्टेन द कैश. तो बैंक क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट जो है वो उसके ऊपर चार्ज करेगा, एंड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद बैंक जो है जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो इस पर्सन को जिसके पास जो होल्डर ऑफ द बिल है वो उसके पास दे देगा. नाउ द बिल इज़ विद द बैंक और ड्यू डेट पे जो अमाउंट है वो रिसीव होगा बैंक को. तो व्हाट एंट्री इज़ टू बी पास्ड इन दिस केस. अब बिकॉज जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था एक्स ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स के पास पेमेंट रिसीव हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट. अब जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो बैंक कुछ डिस्काउंट चार्जेस लेगा, वो डिस्काउंट चार्जेस एक्स के लिए लॉस है, सो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. क्योंकि बिल जो था अब वो बैंक के पास चला गया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया एक्स ने तो वाई क्या एंट्री करेगा, वाई तब कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक और एक्स के बीच में हुई है, तो वाई उस टाइम पे कोई एंट्री नहीं करेगा. क्लियर है. नाउ अब आपका ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट के टाइम पे अमाउंट जो है वो रिसीव होगा बिल का. अब जो बिल है वो तो बैंक के पास है, इस एक्स के पास तो बिल है नहीं, तो एक्स तो कोई एंट्री नहीं करेगा, सो नो एंट्री विल बी डन बाय दी एक्स. और वाई क्या एंट्री करेगा, वाई ने आपकी सेम एंट्री कर रही है जो फर्स्ट केस में की थी, मैच्योरिटी डेट पे बिल पेमेंट करने की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो वाई जो है वो पेमेंट कर देगा, सो द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज विल पेड टू दी बैंक. तो जो अमाउंट है वो बैंक के पास पे करने की वो एंट्री कर देगा. क्लियर. नाउ लेट अस डू एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सपोज एक्स ने गुड सेल की वाई को फॉर 10,000 ऑन 15th ऑफ मार्च. ऑन द सेम डे वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया फॉर 4 months 10,000 का. एक्स ने बिल डिस्काउंट कराया 15th अप्रैल को 18% एट हिज बैंक, एंड वाई मेट द बिल ऑन मेच्योरिटी, पास जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स. अब एक्स ने जब गुड्स सेल की थी वाई को तो वो अपने इसने सेल की थी 10,000 की गुड्स सेल की थी 15th मार्च को, और वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया था, वापस एक्स को दे दिया फॉर 4 months के लिए. उसके बाद एक्स ने बिल यानी कि 1 month आफ्टर 1 month एक्स ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया एट 18% पर एनम. नाउ व्हाट एंट्री इज टू बी पास बाय दी एक्स. तो सबसे पहले तो एक्स ने गुड्स सेल की थी वाई को, तो एक्स क्या एंट्री करेगा ऑन 15th ऑफ मार्च 2019. मार्च 15 जब एक्स एंट्री करेगा वाई टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड टू वाई 10,000, और एट दिस टाइम वाई की एंट्री करेगा ऑन द सेम 2019 मार्च 15 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000 फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स. तो एक्स ने गुड्स परचेज की थी तो एंट्री होगी, वाई ने एंट्री करी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. अब आपके जो गुड्स सेल करी थी एक्स ने, नाउ 15th अप्रैल को, अप्रैल 15 को एक्स ने जो था वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया. जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया देन एक्स क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अब कितना डिस्काउंट मिलेगा, आपका जो बिल था वो 10,000 का था, जो परसेंटेज आपको गिवन है 18% गिवन है,
और जो बिल राइट करवाया था वो 4 मंथ्स का था, लेकिन बिल जब बैंक से डिस्काउंट कराया वो 15 अप्रैल को कराया था, मीन्स आफ्टर दैट 3 मंथ्स विल लेफ्ट, तो 3 महीने का डिस्काउंट जो मिलेगा दैट इज़ 450। सो 10,000 का बिल जो था वो बैंक के पास चला गया, बैंक ने 450 के डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर दी 9,550 की। अब ये जो बिल था वो बैंक से डिस्काउंट करवाया था एक्स ने, ट्रांजैक्शन हुई है एक्स के और बैंक के बीच में, तो वाई कोई एंट्री नहीं करेगा। क्लियर। अब आपके पास आएगी पर्टिकुलर ड्यू डेट। आपने जो बिल राइट किया था वो 15 मार्च को किया था और 4 मंथ्स का, 15 मार्च मीन्स 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, और 3 दिन डेज के आप ऐड करेंगे तो 15 अप्रैल, मई एंड जून, तो 15 जून आई। और ये आपके पास पर्टिकुलर जून के बाद 4 मंथ आपका 15 जुलाई, और 15 जुलाई के बाद 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगी 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को एक्स के पास तो बिल है नहीं, बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक एंट्री करेगा, और वाई क्या एंट्री करेगा, जुलाई 18 को सेम एंट्री उसने करनी है जो उसने फर्स्ट केस में की थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, देन बिल्स पेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बिकॉज द पेमेंट इज गोइंग टू बी डन, द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। तो जो ये 10,000 का बिल था वो पे कर दिया मैच्योरिटी डेट पे। सो क्लियर, दिस इज़ द वे हाउ टू